Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of polity through MCQ series, and these MCQs are directly based on the book M. Lakshmikant. Now before starting the questions, I'll discuss some of the explanation regarding this chapter which I have summed up here, and then after the explanation part we will straight away move to the questions. नाउ अगर ये एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो ये पार्लियामेंट चैप्टर आपका बहुत परफेक्टली रिवाइज हो जाएगा, एज आई हैव मेड हेयर अराउंड 100 क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट. Now, the Parliament chapter is mentioned under Part 5 of the Constitution, ranging from Article 79 to Article 112 of the Constitution. Now, we will study in the explanation part about the organization of the Parliament, the composition, the duration of the houses, the officers, लोक सभा को कौन लीड करता है, राज्यसभा को कौन लीड करता है, about the procedures, how to pass the budget, how is budget passed, question hour, etc. Privileges, what are the privileges of the members, collective privilege होते हैं, individual privilege होते हैं, and this parliamentary privileges are mentioned under article 105. ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Also we will see about the powers of the parliament, for example legislative power, executive power, judicial powers. All of this we will study in this chapter. Now let's begin with the organization part. Now first of all let us see about the organization of parliament. Now the parliament of India consists of three parts. Parliament के तीन parts होते हैं. First one is the president, then it comprises the Lok Sabha, then there is the Rajya Sabha. ठीक है. नाउ ये लोकसभा एंड राज्यसभा के हिंदी नेम्स दिए गए थे इन द ईयर 1954. इससे पहले द लोकसभा वॉज नोन एज हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा वॉज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है. नाउ 1954 में इनका हिंदी नेम्स दिया गया था, दैट इज लोकसभा फॉर द हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेयर एज द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. Now, the next point is about the president. Let me tell you something about the president. Although we have studied it in the president chapter, but थोड़ा सा brief मैं यहाँ पे बता देता हूँ. The president is not a member of either house of the parliament, that is लोक सभा और राज्य सभा के member नहीं होते हैं. President, he does not sits in the any house of the parliament, although he is the member of an integral part of parliament, because as per article 75 all the executive decisions are taken on the name of the president. Okay. Now the president is an integral part of parliament, we have seen, and he also performs some of the certain functions relating to the पार्लियामेंट, दैट इज ही समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट. ये सारा डिस्क्रिप्शन में मैं आगे बताऊंगा सब्सिक्वेंट हेड्स में. ठीक है. ही समन्स एंड प्रोरोग बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ही कैन डिजॉल्व द लोकसभा, ही एड्रेसेस द बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. ही कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 1 to 3. ये सारा का सारा अपने प्रेसिडेंट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा जो हेड है दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होता है. नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250 मेंबर्स, बट प्रेजेंटली देयर आर 245 मेंबर्स. ठीक है. आउट ऑफ विच 229 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स के हैं, 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, एंड देन यूनियन टेरिटरी भी कौन सी, ओनली दिल्ली एंड पौंडीचेरी, and then 12 members are those which are nominated by the president. ठीक है. 250 is the maximum, 250 is the maximum strength. Currently 245 strength है, and 12 members are there which are nominated by the president. This you need to know. Also the council of ministers, the seats regarding the council of ministers are directly mentioned in the 4th schedule of the constitution. ओके. नाउ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ जैसे कि द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दैट इज इलेक्शन, एंड दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
the elections are conducted by the Election Commission of India. Okay, the members of the Lok Sabha are directly elected, whereas the members of the Rajya Sabha are indirectly elected, okay, by the system of proportional representation. And 12 members are elected by the nominated by the president, and these nominated members belongs from the field of art, literature, science and social service. Now, social service की मैं बात करूं तो recently Sudha Murthy has been nominated to the Rajya Sabha. Okay. Now, let me talk about the representation of the states. जो 238 members होते हैं, these are indirectly elected by the elected members of state legislative assembly by a system of proportional representation by the means of single transferable vote. ठीक है. Now, the members of Rajya Sabha is elected by the elected members of the state legislative assemblies. Now, if I talk about the representation of UTs, as we know that Rajya Sabha में the representation is based on the population. So, Delhi and Puducherry are the only two union territories having representation in the Rajya Sabha. ये आपको पता होना चाहिए. Now, next point is about the nominated members. Nominated members we have already discussed. 12 nominated members are there by the president on the field of art, literature, science, art, literature, social service and science. Now, if I talk about the Lok Sabha, the members are directly elected. The maximum strength given in the constitution is 552. Currently 545 members हैं. Now, इसका further bifurcation is 530 members are from the states, 20 members belong from the union territory, and there is a separate act 1965, Union Territories Direct Representation Act of 1965, जहाँ पे the members of the Lok Sabha belonging from the UT are selected. Now, there was erstwhile a provision of two people who belong to the Anglo-Indian community were nominated by the president. Now, this provision has been done away with in the 104th Amendment Act. Now, ये जो 2 सीट्स होती थी अब ये नहीं है. ठीक है. Now, direct elections take place and the voting age is 18 years. One important provision to remember here is the age was reduced from 21 to 18 by the 61st Amendment, Constitutional Amendment Act, and इसका year important है, that is year 1988. Okay, now composition हो गया हमारा. Now we will see. Now, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ regarding the representation in the Lok Sabha. See, there is the parliament is the supreme authority to determine the manner in which the changes in the readjustment of territory is to be made. So, delimitation commission is established. ठीक है. 4 times अभी तक ये establish की जा चुकी है till the year 2024. ठीक है. And this recommends the readjustment which is done by after each census. Okay, this is about the delimitation commission. 4 times ये अभी तक सेटअप की जा चुकी है, and this question has been asked in the UPSC 2024 examination. ठीक है. Now, the next is about the duration. Now, Rajya Sabha is the house which is not a subject to dissolution. It means that the Rajya Sabha cannot be dissolved. Although 1/3 of the member of the Rajya Sabha retire every 2 years, and it is not a subject of dissolution. Also, the retiring members are not eligible for re-election, so it means that they can be elected only one time. Also, the constitution has not fixed the terms of office of the member of Rajya Sabha. The term of the members of the Rajya Sabha has been provided in the Representation of People Act of the year 1951, जिसमें ये दिया है कि there should be the tenure of the member should be 6 years. Also, the president has to make the provision for the retirement of members of the Rajya Sabha. This has been given under the Representation of People Act 1951 and not the Constitution.
ओके, सो ये आपको क्वेश्चन रहेगा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज़ बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें स्टार मार्क करके द ड्यूरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अगर होगा तो आप उसको गलत मार्क करेंगे, क्योंकि द 6 year tenure has been provided in the Representation of People Act and not the Constitution. These are the words which you have to look in. ठीक है, क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड्स देखना पड़ेगा. Now, if I talk about the Lok Sabha, now the normal tenure of the Lok Sabha is 5 years, but it can be extended during the case of national emergency. We have seen Article 352 में it can be extended by 6 months. Indefinite period of time के लिए हम इसको extend कर सकते हैं. And this cease to operate when after the 6 months after the emergency has ceased to operate. ठीक है, this is all about the tenure or duration of the Lok Sabha. Now if I talk about the qualifications to be a member of parliament, सबसे पहला तो citizen होना पड़ेगा इंडिया का, citizen of India, and the age regarding Rajya Sabha is 30 years. The age regarding them being a member of Lok Sabha is 25 years. ठीक है. Now there are some disqualifications also. तो एक disqualifications which are given in the constitution. So constitution के अंदर कौन सी disqualification दी गई है? If he holds any office of profit under the union government, if the member is of unsound mind, if the member is an undischarged insolvent. These provisions ध्यान रखना are mentioned in the constitution. ठीक है, and some of the provisions that are mentioned in the Representation of People Act of 1951 ये भी मैं बता देता हूँ. ठीक है, if he is imprisoned for 2 or more years, अगर जेल हुई है, if he is convicted for 2 or more years, then also the preventive detention के अंदर अगर किसी को डिटेन किया गया है तो this is not a type of disqualification. Still preventive detention पे अगर कोई member arrested है या कोई भी citizen who wants to participate in the election, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट अ क्लॉज कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी. प्रेजेंटली अमृतपाल सिंह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं एंड ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द खालिस्तानी मूवमेंट. ठीक है, टू डिस्टर्ब द पीस एंड हारमोनी ऑफ पंजाब एरिया, and he has been arrested under the preventive detention and currently he is in the Dibrugarh jail, but still he has won his seat from Khadur Sahib and presently he is a member of parliament. ठीक है, so preventive detention is not a clause. Now another offenses which are given under the Representation of People Act of 1951, he should not have any interest in the government contracts. Also he should not be a director or managing agent nor hold any office of profit. ठीक है, he should not been convicted for promoting enmity amongst group. Also untouchability, dowry, sati को किसी भी तरह से preach नहीं किया होना चाहिए. So these provisions are mentioned under the Representation of People Act. So another disqualification criteria is mentioned under 10th schedule of the Constitution, which is related to the anti-defection law. Now this law was passed by the 52nd Amendment Act of the Constitution of the year 1985. इसके अंदर कुछ clause है. Let me tell you this. If he voluntarily gives up the membership of political party, then also he is disqualified. Then if he abstains from voting or abstains from voting if any direction is given to the party, अगर किसी पार्टी ने डायरेक्शन दिया है उस मेंबर को एंड ही abstains फ्रॉम वोटिंग, देन ऑल्सो he or she can be disqualified. Next is if any nominated member joins any political party after the expiry of 6 months. अगर किसी nominated member ने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है after 6 months, before 6 months अगर वो ज्वाइन करते हैं तो that is not subject to disqualification, but after the tenure of 6 months has passed तो वो disqualify हो जाएंगे. ठीक है. Now these are the provisions relating to the grounds of defection. Now डबल मेंबरशिप जो है उसको प्रोहिबिट करता है कौन सा?
Representation of People Act of 1951 and not the Constitution. Also, a point here to be noted is that if a member is absent from all the meeting for a period of 60 days without permission, then he stands disqualified. Okay. Now the oath and affirmation. ठीक है, now this is clear. Also salaries and allowance की मैं बात करूँ तो there is no provision for pension for the members of the Lok Sabha और Rajya Sabha. ठीक है. Now let us come to the officers part. Now presiding officer, if I talk about, तो लोक सभा में the presiding officer is the speaker and the second position is of the deputy speaker. Now the speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members. Also, if whenever the office of the speaker falls vacant, then the Lok Sabha elects another member to fill that vacancy. And when this place for this post of the speaker falls vacant, it is the president who decides the date, and it is the president who fixes the date for the election of the speaker. When the speaker is not there, in account of not vacancy, but अगर वो बिजी हैं या अगर वो कोई किसी और काम में हैं, then the deputy speaker can be the speaker of the house and he performs all the functions that the speaker has assigned. अभी speaker के क्या, what are the powers of the speaker? सबसे पहले he maintains the decorum of the house. Secondly, he is the final interpreter of the Constitution of India, rules of procedures of the Lok Sabha, parliamentary precedents जो भी हैं. He is the final interpreter of these things. Now he adjourns the house. Adjournment speaker करता है. Then there is adjournment sign dine. This is also done by the speaker. इन सबका क्या मतलब है, I'll tell you later. Now the speaker presides over the joint sitting when it is summoned by the president under article 108. ठीक है. Also the speaker is the ex officio chairman of the Indian parliamentary group. Okay. Also the speaker appoints the chairman of parliamentary committee. ठीक है. Also the speaker decides which of the bill is a money bill or not. ठीक है. एक चीज याद रखना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में, डिप्टी स्पीकर इज नॉट अ सबऑर्डिनेट पोस्ट बट ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस. बट एक पॉइंट डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग याद रखना कि व्हेनेवर अ डिप्टी स्पीकर इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, देन ऑटोमेटिकली डिप्टी स्पीकर बिकम्स इट्स चेयरमैन. ये सब बहुत की पॉइंट्स हैं. ठीक है, इनको डिवाइस करना अच्छे से, इसको ध्यान में रखना. ठीक है. नाउ द सेम इज देयर फॉर द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. चेयरमैन इज हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. कौन? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. देन कम्स द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है. नाउ रूल्स, रोल्स एंड पावर एंड फंक्शन बता दिया, इलेक्शन भी बता दिया, टेन्योर भी बता दिया मैंने. नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ the president from time to time summons the parliament, but it should be noted that the maximum time between the two sessions of the parliament cannot be more than 6 months. ठीक है. तो president summons the parliament. Now the adjournment is done by the speaker. What does this adjournment mean? That a sitting of a parliament can be terminated by adjournment. ठीक है. And adjournment suspends the work for a specified time. तो वो स्पीकर नोटिफाइड कर देते हैं कि भाई वर्क 6 आवर या 1 डे या 2 डे के लिए वर्क इज सस्पेंडेड. सो एडजर्नमेंट साइन डाइन में क्या होता है कि नो टाइम पीरियड स्पेसिफिकली इज मेंशन्ड. बस एडजर्न कर दिया हाउस को, उसके बाद में इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं होता है. नो टाइम फॉर रिकमेंसमेंट इज मेंशन्ड. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोरोगेशन. सो whenever the speaker of the or the chairman declares the house
adjournment sidelined, then the business of the session is completed, then the president prorogues the house. Next comes is of dissolution. The president can dissolve Lok Sabha, but you need to know that the Rajya Sabha is not a subject for dissolution. So जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, देन देयर इज अ कंडीशन रिगार्डिंग सम बिल्स. ठीक है, अब वो मेरे ये कंडीशन सुन लेना, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अ बिल दैट इज पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस. ठीक है. सेकेंड इज अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी लैप्स कर जाता है. देन द थर्ड कंडीशन क्या बनती है, व्हेन नीदर लोकसभा नॉर द राज्यसभा passes the bill due to a disagreement and president has notified of a joint sitting. ठीक है, बिफोर द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा वो भी बिल लैप्स नहीं करता है. फोर्थ कंडीशन हमारी क्या बनती है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा, ये भी लैप्स नहीं होता है. बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि जो भी बिल लोकसभा को टच कर देगा या लोकसभा में किसी भी थ्रू पहुँच जाएगा, वो बिल लैप्स होना है ऑन अकाउंट ऑफ डिसॉल्यूशन. ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा. नाउ व्हाट इज़ द कोरम. कोरम जो है इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर. सो लोकसभा के लिए कोरम कितना होगा, 55 मेंबर्स का, एंड राज्यसभा के लिए कोरम कितना होगा, तो 25 मेंबर्स का. ठीक है. Now, there are some of the devices which are parliamentary devices through which the parliament exercises the control over the council of ministers. ठीक है, तो क्वेश्चन आवर होता है सबसे पहला. क्वेश्चन आवर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव रिप्लाई. ठीक है, इसमें स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर, सिर्फ मिनिस्टर नहीं, प्राइवेट मेंबर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ 0 आवर इज एन इंडियन इन्वेंशन. ठीक है, एंड इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द पहले क्वेश्चन आवर होता है और उसके जस्ट बाय 0 आवर होता है. देन देयर आर डिफरेंट मोशन. सबसे पहला क्लोजर मोशन होता है, देन हमारा होता है प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस, सेंश्योर, मोशन ऑफ थैंक्स. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड्स टू रिज़ाइन, इनको रिज़ाइन करना पड़ता है, द गवर्नमेंट इन द सेंटर फॉल्स. ठीक है. द बजट आर्टिकल 112 में द वर्ड बजट इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंशनड. Now there are different charge expenditure जो कि बताए गए हैं. सो व्हाट आर दीज चार्ज एक्सपेंडिचर, ये वी विल डील इट विथ इन मतलब डील विथ दीज प्रोविजंस अंडर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. देयर आर डिफरेंट फंड्स दैट आर कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड एंड कंटीजेंसी फंड. इन सब के भी बारे में हम क्वेश्चन में देखेंगे. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट द पार्लियामेंट प्लेज. सो I'll give you information on it briefly, बहुत briefly मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना करे. Now there are various roles and functions that the parliament does, that is legislative power, executive power, then comes financial power and then comes the judicial power. ये सारे के सारे powers हमारे पार्लियामेंट के पास होते हैं. Some of the legislative power है बिल्स को पास करने की. ठीक है, यूनियन लिस्ट पे लॉज बनाने की पावर है. व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, ऑल द बिल्स एंड लॉज आर पास बाय देम. सो यही सारा इसमें मेंशन्ड है. ठीक है, अब यहाँ पे बिल्स होते हैं, सम आर ऑर्डिनरी बिल्स. ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, जो कि स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस से पास हो जाएं. If there is a disagreement, then there is a provision of joint sitting which is summoned by the president. अब मैं बाकी सारे जितना भी मैंने आपको बताना है ये सब स्पेसिफिक हेड्स के क्वेश्चन है. दिस आई विल टेल यू इन दी क्वेश्चंस इटसेल्फ, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे. नाउ द मनी बिल इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल द प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजन दैट आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू टैक्सेस, ये सारे के सारे होते हैं हमारे मनी बिल में.
The speaker, the decision regarding which of the bill is money bill or and which is not is mentioned in the मतलब स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा नहीं. एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ होती हैं लोकसभा विथ रिगार्ड्स टू मनी बिल. द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन टू लोकसभा. राज्यसभा का के पास कोई भी पावर नहीं होती है रिगार्डिंग मनी बिल. इफ़ राज्यसभा डिसएग्रीज ऑल्सो देन ऑल्सो लोकसभा उसे पास कर सकता है. इफ़ राज्यसभा कोई अमेंडमेंट प्रपोज करे तो लोकसभा के ऊपर कंपल्शन नहीं होता है कि ही हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ द राज्यसभा. Without altering B, the money bill can be passed. So Rajya Sabha has no power to regarding the money bills. Now finance bill are mentioned under article 1171 and 1172. अब 1171 के अंदर में जो भी finance bill हैं these are similar to the money bills. दो context में similar होते हैं. Firstly, these both can be introduced in Lok Sabha only, and then the recommendation of president is required इन दोनों को present करने के लिए. नाउ फाइनेंस बिल 2 की मैं बात करूं अंडर आर्टिकल 1172 तो दीज इज लाइक ऑर्डिनरी बिल बट स्पेसिफिकली एक प्रोविजन क्या होता है इसके अंदर कि इट कैन नॉट बी पास बाय ईदर हाउस अनलेस दे रिकमेंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट टू दैट हाउस. मतलब अगर लोकसभा को स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कि आपको ये बिल पास करना है देन ओनली दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. सो फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 1172 के अंदर होता है जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन. ठीक है. देन हमारी पोजीशन ऑफ राज्यसभा इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा कहाँ कहाँ होता है. स्पेशल पावर क्या होती है. स्पेशल पावर किस चीज़ के बारे में होती है तो रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग स्पेशल पावर होती है. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव पावर होती है राज्यसभा के पास. इक्वल स्टेटस कहाँ होता है ऑर्डिनरी बिल के पास के रिस्पेक्ट में होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए होता है. सॉरी अनइक्वल स्टेटस कहाँ होता है राज्यसभा का. सो रिगार्डिंग मनी बिल कोई पावर्स नहीं होती मनी बिल के रिगार्डिंग. इक्वल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल. सो ये सारा माने वाले उसमें पढ़ेंगे. द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 105. दो तरह के प्रिविलेजेस मेंशन्ड हैं. कलेक्टिव प्रिविलेज हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज हैं. इन प्रिविलेजेस का सोर्सेज क्या है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है देन कन्वेंशंस हैं देन रूल ऑफ प्रोसीजर है. ये सारे के सारे हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के सोर्सेज है. नाउ रेस्ट ऑफ दिस नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड जो भी यहाँ पे कमियाँ होंगी जो मैंने नहीं बताया है दिस आई विल एक्सप्लेन इन दी क्वेश्चंस. नाउ 100 क्वेश्चंस है. चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. The first question is a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on the dissolution of the Lok Sabha. And the second statement is a bill pending in Parliament shall lapse by the reason of the prorogation of House. अभी आप ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको लगेगा ये सही है बट दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वाई क्योंकि द बिल shall lapse by the reason of dissolution of Lok Sabha. Now अब dissolution and prorogation both are done by the president but an important fact to note here is कि prorogation कौन करते हैं तो वो president करते हैं and it is done after the chairman or the speaker of the house does adjournment sign die. It means the chairman or the speaker of the Lok Sabha does not mention the specific date. उसके बाद देयर इज प्रोरोगेशन बट डिसोल्यूशन करते हैं प्रेसिडेंट एंड जो बिल पेंडिंग होते हैं वो लैप्स कब होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन एंड नॉट प्रोरोगेशन. ऑल्सो if I tell you about a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse, so it shall not lapse. बेसिक फंडा याद रखना कि जिस बिल ने लोकसभा को टच कर लिया या वो लोकसभा गया दैट बिल विल लैप्स. लेकिन अगर वो बिल राज्यसभा पे हैं एंड इट हैज़ नॉट वेंट टू द लोकसभा इन एनी वेज तो द बिल शैल नॉट लैप्स. ठीक है. सो बोथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हेयर आर नॉट करेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो डी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. द सेकेंड क्वेश्चन इज
The chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People or a person acting as such shall not vote at any sitting of either House of Parliament or joint sitting of the House in the first instance, but shall have an exercise a casting vote in the case of equality of votes. So this is absolutely right. And ये किस रिस्पेक्ट में दिया है कि मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन पार्ट में. देन दे कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मे इट बी लोक सभा एंड मे इट बी राज्यसभा, but these ministers do not have the right to vote. But in case of equality of votes, in the case of the speaker of the house and then the chairman of the house, उनके पास में इक्वालिटी के केस में कास्टिंग वोट होता है. ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज राइट. अब मिनिस्टर्स के राइट से कंफ्यूज मत करना. मिनिस्टर्स के पास राइट टू वोट नहीं होता है इन एनी इंस्टेंस, जबकि स्पीकर और चेयरमैन के पास ये राइट होता है इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स. जब वोट्स इक्वल हो जाएं तो कास्टिंग वोट का राइट होता है विद द स्पीकर एंड द चेयरमैन. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Next is a person is qualified to fill a seat of Council of State or the House of People if he is not less than 25 years of age. So I've already told you two separate age have been mentioned. That is Lok Sabha के लिए 25 years होना चाहिए minimum and then Rajya Sabha के लिए 30 years होना चाहिए. So the second statement is incorrect. Correct answer हो जाएगा हमारा only one. Now next question is, since the sums required to meet the expenditure described by the Constitution of India as expenditure charged upon the Consolidated Fund of India are not submitted to the vote of Parliament, no house is competent to discuss these estimates. We have to tell here which is the correct statement. So this is absolutely incorrect, क्योंकि जो भी the expenditures which are charged upon the Consolidated Fund of India, it can be discussed. डिस्कशन उन पे हो सकता है, बट दीज के आइटम्स आर नॉट देयर फॉर वोट. इन पे वोट नहीं हो सकता है. ठीक है. आर सबमिटेड टू वोट, नो हाउस इज अलाउड टू डिस्कस. दे आर अलाउड टू डिस्कस बट दे कैन नॉट वोट. ठीक है. दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Second one is the annual finance bill provides the legal authority for withdrawal of the sums from the Consolidated Fund of India. Now the Consolidated Fund of India के ऊपर कौन से मैटर चार्ज होते हैं? The matter which are charged on the Consolidated Fund of India, and we have to pass the appropriation bill for that. No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except an appropriation bill is passed. तो एनुअल फाइनेंस बिल तो गलत है. फाइनेंस बिल वैसे भी मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 117. सो इसके पास तो लीगल अथॉरिटी नहीं होती है. इट इज़ द एप्रोप्रिएशन बिल जहाँ पे अथॉरिटी होती है टू विड्रॉ सम्स फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. 3 का बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट. नाउ consider the following statement in respect of the provision for removing the deadlock between the two houses of the parliament. Now whenever there is deadlock regarding issues, there is a provision of joint sitting in the constitution under article 108. ठीक है. Now after a bill has been passed by one house and transmitted to other house, the president may notify to the house his intention to summon them for a joint sitting if the bill is rejected by the house. Absolutely correct. Next is the house have finally disagreed as to the amendments to be made by the bill. Absolutely correct. Now more than 3 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed. The statement is absolutely incorrect, क्योंकि यहाँ 3 months नहीं 6 months है ये डेडलाइन. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं एंड यू शुड नोट देम डाउन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हमने एलिमिनेट कर दिया स्ट्रेट अवे. द आंसर इज 1 and 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement about the reason for the separation of railway budget from the general budget are correct?
Now, first of all, let me tell you the railway budget was separated in the year 1921 from the general budget. ठीक है. Now, अब यहाँ पे किसी रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया, तो देयर मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. अब हर चीज़ के लिए तो ऐसा नहीं है कि आपको पता होना ही चाहिए कि क्या बोल रहे हैं. तो चलो देखते हैं. लेट अस सी द ऑप्शंस. यू हैव टू थिंक एज अ सिविल सर्वेंट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, हर क्वेश्चन में आप रट नहीं सकते हो. तो लेट अस सी. टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट. यस, अगर सेपरेट कर दिया रेलवे बजट को जनरल बजट से, तो द रेलवे बजट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी मोर फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट उसकी मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच फॉर द रेलवे पॉलिसी. यस, जब भी अगर सेपरेट बजट आएगा रेलवेज का, तो इट वुड बी मोर फ्लेक्सिबल एंड इट वुड बी मोर ओपन टू चेंजेस. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में हम उसे चेंज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट है. टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवेज रेवेन्यू. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. रेलवे बजट को हमने सेपरेट कर दिया, तो हम एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली दिखाएंगे, हम रेवेन्यू को प्रॉपरली शो करेंगे. सो अकॉर्डिंगली वहाँ पे स्टेबिलिटी इंश्योर होगी. टू इनेबल द रेलवेज टू कीप देयर प्रॉफिट्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट. यस, व्हेन सेपरेट बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर रेलवेज, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जो रेवेन्यू होगा, मान लो एक्सपेंडिचर इज 1000 करोड़, revenue is 1500 crore, so the profit will be 500 crore and the 500 crore will be used by the railways only ना, क्योंकि रेलवे बजट है. So all of the statement given here are correct. Next question. Now an exceptional grant under the Constitution of India is regarded as. Now what does an exceptional grant means? पहला ऑप्शन क्या हमारा, an advance on the account of estimated expenditure फॉर द फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग कंप्लीशन फॉर द प्रोसीजर फॉर वोटिंग ग्रांट्स. ये तो नहीं है. नेक्स्ट इज अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इनडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस विच कैन नॉट बी स्टेटेड विद डिटेल्स. सो दिस काइंड ऑफ डिमांड इज नोन एज वोट ऑफ क्रेडिट. ठीक है. नेक्स्ट इज अ ग्रांट फॉर्मिंग नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर. दैट इज़ वाई तो उसको एक्सेप्शनल बोला ना, कि उसके लिए कोई एलोकेशन ही नहीं था, वो तो सडनली आ गया तो देना पड़ा. तो सी इज़ द अप्रोप्रिएट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन. नाउ अ ग्रांट मेड व्हेन अ नीड हैज़ अराइजन ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर. अब वर्ड एडिशनल आ गया, तो यहाँ वर्ड एडिशनल आ गया, तो ये कौन सा ग्रांट होगा, दिस विल बी एडिशनल ग्रांट. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन फॉर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इन. सबसे पहला तो द कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1950. ऑल्सो द फंड इज डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के अंडर इस फंड, ये फंड किसके पास होता है, तो इट इज अंडर द हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी. नाउ इसका क्या एम है भाई, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. एब्जॉल्विंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स. एब्सो कंटीजेंसी का क्या मतलब है, विच मे अराइज, एन इवेंट विच मे अराइज और मे नॉट अराइज. कंटीजेंसी का तो मतलब वही होता है. तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है. कंपेलिंग द लेजिस्लेचर टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर, नो. रिड्यूसिंग द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, नो. प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी वेल्व टू टाइड ओवर अ क्राइसिस. अ क्राइसिस मे कम और मे नॉट कम. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब देखो वर्ड एसोसिएशन से भी यू कैन फाइंड सम ऑफ द आंसर्स. ठीक है ना, 7 का डी इज द राइट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ कंट्रोल मे बी अडॉप्टेड फॉर रेजिंग अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. नाउ what is a censure motion, is it for a matter of urgent public importance, तो no, it is issued against individual ministers, or it can be issued against a group of ministers, or it can be moved against entire council of minister. किस लिए ये इशू होता है, इट इज़ देयर कि किसी मिनिस्टर की पॉलिसी is not in collaboration with the rules of the house, then the censure motion is called. Calling attention motion में क्या होता है, it is mentioned under rules of procedure of the Lok Sabha and it deals with the matter of urgent public importance. Now there is some sort of similarity between calling attention and adjournment motion.
कॉलिंग अटेंशन मैंने अभी बताया, इट इज़ रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर क्वेश्चन में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ डेफिनेट अर्जेंट इम्पोर्टेंस, देन वो हमारा एडजर्नमेंट मोशन होता है। ठीक है, कट मोशन इज रिलेटेड टू बजट when we have to cut short the expenditure that is allocated or cut down the funds which are specifically allocated to a budget or some of the scheme, then a cut motion is introduced. So urgent public importance में calling attention motion will be the correct answer and a matter of definite urgent public importance is a adjournment motion. ठीक है, confuse नहीं होना। 8 का हमारा B is the right answer. Now next is consider the following statement relating to the procedure of the election of the speaker and the deputy speaker of Lok Sabha. The election of the speaker shall be held on such date as the prime minister may fix and the general secretary shall send to every member the notice of this date. Now the election of a speaker in case of vacancy is decided by the president and not the prime minister. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट द सेकेंड वन इज कि द इलेक्शन ऑफ अ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन अ सच डेट स्पीकर में फिक्स एंड द जनरल सेक्रेटरी शैल सेंड द टू एवरी मेंबर द नोटिस ऑफ द डेट। यट बिल्कुल करेक्ट है। डिप्टी स्पीकर के लिए द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल एंड जब स्पीकर के लिए डेट शुड बी अनाउंस तो ये प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। ठीक है ना, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is not correct? An appropriation act is not essential for passing a grant under a vote of credit. बिल्कुल हमारा सही आंसर है ये। An appropriation act is needed, it is essential to pass a vote of credit. क्यों? क्योंकि vote of credit के अंदर जो पैसा होता है that is given from the consolidated fund of India and we know हमारे पहले क्वेश्चन से कि द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ विड्रॉ करना है तो अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नीडेड टू बी पास। तो ए हमारे यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट, कितने टाइम लोकसभा को मीट होना होता है? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू ट्वाइस अ ईयर एंड मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए बिटवीन टू सेशंस वो होता है 6 months का। ठीक है, so twice a year with no more than 6 months between the sessions. 11 का D is the right answer. Next is consider the following statement. The nature of a bill, if it is certified by the Speaker of the House of the People as money bill, is not to open question in the court of law. We have to tell the correct statement and the statement is absolutely true. The final judgment regarding if a bill is a money bill or not is decided by the speaker and it is not objectionable in the court of law. Next is the president of India has the power to question the nature of a bill. अभी मैंने बताया no one has the power to question the bill. एक बार स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल मनी बिल है तो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं, neither can the courts object to that. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, हमारा 12 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एस्टिमेट्स दैट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ बिल्कुल करेक्ट बात है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द चार्ज एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहला तो होता है चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर दैट इज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर द चार्ज एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉन वोटेबल, क्योंकि देयर इज ओनली द पावर टू डिस्कस, वेयर एज इफ एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो इट कैन बी वोटेड। ठीक है, चार्ज अपॉन के केस में इट इज अ नॉन वोटेबल। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा जस्टिफाइड है। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू डिस्कस द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन दी। अभी डिस्कस तो कर ही सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। चार्ज अपॉन द एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज अपॉन, अभी बताया मैंने,
रीजन इज इनकरेक्ट, assertion is correct, हमारा C is the right answer. Now the next question is question number 14. What does the rule of lapse means? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा समझ लेना. ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. जितना भी जो भी कैरिड फॉरवर्ड होके आ रहा है कुछ नहीं होता है, सारा का सारा अमाउंट जो अप्रोप्रिएशन का होता है इट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एक्सपायर करना मतलब लैप्स कर जाना. वर्ड एसोसिएशन से भी यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज 14 का बी इज राइट. Next question is the expenditure charge upon the consolidated fund of India comprises. So let me now tell you which of the expenditures are charged on the consolidated fund of India. सबसे पहला तो the salary of the president. Then comes the chairman plus deputy chairman of the Rajya Sabha. Then comes the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी. देन कम्स दी हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन. एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी इंक्लूड होती है, पेंशन भी इंक्लूड होता है. देन हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी सैलरी, दिस इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. ये ध्यान रखना, द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसके अलावा कैग की सैलरीज, कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिट जनरल, देन यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स, देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दीज ऑल आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस हियर. पेंशन पेएबल टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, yes, absolutely correct. सैलरी अलाउंसेज एंड द पेंशन पेएबल टू द कैग ऑफ इंडिया, इसके साथ यूपीएससी भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये भी ध्यान रखना. सो करेक्ट आंसर इज हमारा 1, 2 एंड 3. ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड. नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्ट ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट. सो व्हाट एडजर्नमेंट मोशन का क्या काम होता है? सबसे पहले कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स. सेकेंड है हमारा मेक अ कट. अरे एडजर्नमेंट मोशन इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री कंट्रोल. बजट कहाँ से आ गया? क्रिटिसाइज ए पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टॉपल द गवर्नमेंट. टॉपल द गवर्नमेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड्स टू रिजाइन. इसके अलावा इफ अ मोशन ऑफ थैंक्स, एक मोशन ऑफ थैंक्स भी होता है. अब ये क्या होता है कि द प्रेसिडेंट lays down the policies and programs of the government. This is also needed to be passed. अगर ये पास नहीं होता है तो this amounts to the defeat of government. तो ये motion of thanks का भी पास होना ज़रूरी है. Collect the information from the ministries, criticize a particular policy. So the adjournment motion is for criticizing a particular policy of the government. ठीक है, इसी के लिए होता है ये. आई होप कि थिंग्स क्लियर हैं आपको. नेक्स्ट हमारा आ गया व्हाट इज गिलोटिन. गिलोटिन का क्या मतलब होता है? डिवीजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन आर वेरियस वेज टू अराइव एट अ कंक्लूजन. गिलोटिन क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ एन अनडिस्कस्ड क्लॉज. अगर मान लो, बताता हूँ मैं अभी, अगर मान लो ये पूरा बजट है, इसमें 1, 2, 3, 4 क्लॉज हैं. 3 क्लॉज हमने पढ़ लिए, 4 क्लॉज अभी तक डिस्कस नहीं हुआ पार्लियामेंट में. स्टिल ये अनडिस्कस जो क्लॉज है दैट इज क्लॉज नंबर 4, उसको भी अलॉन्ग विथ वोट डाल दिया जाता है. वोटिंग के टाइम पे अनडिस्कस क्लॉज को भी वोटिंग पे डाल दिया जाता है अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वोट्स. ठीक है, सो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि कॉन्क्लूड्स द डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स. ठीक है, देन मोशन. व्हाट इज मोशन? मोशन रूल्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस can take place except on a motion made with the consent of the presiding officer, that it is a formal proposal made by a member to the house. Next is what is point of order. So point of when the proceedings of the house is not following the normal rules of the procedure, then a point of order can be issued. So subsequently when we will arrange this, 17 का हमारा क्या आंसर होगा? C आंसर होगा, that is mode of arriving at a decision. Then is concludes discussion on demand for grants. Then हमारा C and then D. ठीक है, इसका C is the right answer. Now then comes question number 18.
Which of the following is the correct sequence of the given stages in relation to the enactment of budget? अब बजट इनैक्ट करने के मैं बताता हूँ आपको. सबसे पहले अब बजट इज प्रेजेंटेड इन द हाउस. नेक्स्ट देयर इज जनरल डिस्कशन. अभी बताया मैंने, डिस्कशन से रिलेटेड गिलोटीन बताया ना, डिस्कशन होता है. देन देयर इज डिमांड फॉर वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स. ग्रांट्स डिमांड होते हैं. फिर इसके बाद क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड. अब एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है मतलब कि बजट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वी गिव द अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. देन अल्टीमेटली द फाइनेंस बिल इज पास्ड. जो भी फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशंस होते हैं गवर्नमेंट के, दैट आर इंक्लूडेड, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ द बजट. नाउ लेट्स सी किस ऑप्शन में. वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं भाई, पहले इंट्रोड्यूस तो करो. वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट दोनों गलत हैं. जनरल डिस्कशन सही बात है. कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल नहीं भाई, ये तो लास्ट स्टेज है. बी हमारा आंसर होगा. यहीं से देख लेते हैं फिर भी. जनरल डिस्कशन ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट वोट कर लिया, एप्रोप्रिएशन एक्ट पास कर लिया, फाइनेंस बिल पास कर दिया, हमारा बजट पास हो गया. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच. तो कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है रिगार्डिंग सीट्स टू द राज्यसभा. अब टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज़ 250. स्टेट्स के 238 मेंबर्स होते हैं. 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. बाय हुम? बाय द प्रेसिडेंट. एंड ये कौन से फील्ड से होने चाहिए? साइंस के फील्ड से होते हैं, सोशल फील्ड से होते हैं, देन आर्ट के फील्ड से हो सकते हैं. ठीक है. सो बिहार यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है क्योंकि बिहार में 16 सीट्स हैं इन दी राज्यसभा. ओके, हमारा सी इज़ द राइट आंसर 19 का. लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कौन से स्टेट की हैं इन दी राज्यसभा? ऑब्वियसली यूपी की होंगी, क्योंकि we know that the number of the seats, allocation of the seats in Rajya Sabha is based on proportional representation on the basis of population. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भाई यूपी की है, तो यूपी से सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, बट ऑब्वियस है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेशन ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सबसे पहले तो ये समझ लो कि इफ़ देयर इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस, इट मीन्स कि डिफीट ऑफ गवर्नमेंट है. इट मीन्स कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन. ठीक है. अब एडजर्नमेंट मोशन. एडजर्नमेंट मोशन के बारे में मैंने आपको बताया, अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लिए द एडजर्नमेंट मोशन इज कैरिड आउट. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा. अभी वोट ऑफ थैंक्स है. वोट ऑफ थैंक्स में मैंने अभी बताया, क्योंकि प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो दिस हैज़ टू बी पास्ड, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट. अब कट ऑन मनी बिल. मनी बिल स्पेसिफिकली, मनी बिल का क्या फीचर होता है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. राज्यसभा हैज़ नो राइट्स whatsoever as concerned with the money bill. So if a money bill is not passed in Lok Sabha, it means to the amount of defeat of government. Then censure motion. Censure motion क्यों होता है? It is for censuring the policies, the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पॉलिसीज एंड एक्टिविटी को सेंश्योर करने के लिए. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज कि अगर सेंश्योर मोशन जो है वो पास हो भी जाता है तो गवर्नमेंट डिफीट नहीं होती है, वेयर एज इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, दिस अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट. तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू डिजाइन. 20 का क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच इज़ द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? अभी कोरम के बारे में बताया था. द कोरम इज 1/10. ठीक है. इट इज़ 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस. 21 का डी इज राइट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22. Now the assertion is, after a money bill is passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha, the recommendations of the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from the receipt of the recommendation and then get them incorporated in the bill.
नाउ हेयर इफ़ यू विल सी कि दो केसेस होते हैं. सबसे पहला तो ऑर्डिनरी बिल का. सो इफ़ अ ऑर्डिनरी बिल इज पास बाय द लोकसभा टू द राज्यसभा, देन द राज्यसभा मे एक्सेप्ट, मे रिजेक्ट द बिल. ठीक है. If there is a dispute, then there is a provision of joint sitting regarding the ordinary bill. Now, regarding the money bill, we have seen that exclusive power is there to the Lok Sabha, and the Lok Sabha, it is introduced only in the Lok Sabha. ठीक है, it is not introduced in the Rajya Sabha. So the Lok Sabha can accept the recommendation that is given by the Rajya Sabha or reject. It is not necessary. यहाँ पे स्टेटमेंट है हैव टू बी एक्सेप्टेड, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. ठीक है. सो द स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज रॉन्ग. रीज़न क्या है? अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा. अभी आई हैव टोल्ड यू इट कैन नॉट बी. क्या कौन सा बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड लोकसभा में भी? दैट इज ऑर्डिनरी बिल. सो ए इज फॉर बस but R is true for this question. Next question is, a bill is deemed to be a money bill if it contains only the provision dealing with the. Now let me tell you, the money bill is mentioned under article 110 of the constitution. It can only be introduced in Lok Sabha. Now this contains provisions regarding imposition, abolition, alteration, remission or regulation of any tax. Other than this, it is related to the receipt of the Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, again receipt of the Public Account of India. Also, it is related to the regulation of the borrowing by the Union government. So these all are the provisions which are there in the money bill. Now let us see. फर्स्ट है अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है. रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट, यस ट्रू. एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, यस. कस्टडी ऑफ द कंटिजेंसी फंड, यस. पब्लिक अकाउंट के रिगार्डिंग पे भी द पावर्स आर देयर इन द मनी बिल. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द प्रोविजंस आर देयर. Now the next question is, the Rajya Sabha has exclusive jurisdiction is. Now in the explanation part I've already told you the Rajya Sabha has exclusive jurisdiction with regard to article 312, that is all India services. इसके अलावा the next important part is about article 249, in which the parliament gets the power to legislate on matters mentioned in the state list. ये प्रोविजन कब इम्प्लीमेंट हो सकता है? when राज्यसभा passes the resolution by 2/3 of the majority, and if the provision or the legislation is passed in the purview of the national importance, the matters relating to the national importance. So it authorizes the parliament to legislate on subjects in state list. 24 का D is right. आई होप कि इसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. What is the maximum period that shall not intervene between the last sitting in one session and date appointed for the first sitting in the next session for each house of the parliament? So a maximum gap of there should be कितना होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है. तो क्या आंसर होगा इसका? 6 months विल बी दी आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. When the demands of grants are introduced in Lok Sabha, the speaker applies the guillotine. Now what is the meaning of guillotine here? Guillotine का मतलब क्या होता है? Undisclosed part, undisclosed नहीं सॉरी undiscussed part जो होता है, it is put down to vote with the discussed part. क्यों? क्योंकि टाइम का लिमिट होता है. There is scarcity of time.
सो गिलोटिन कहाँ पे होगा? व्हेन द टाइम एलोकेटेड इज कमिंग टू अ क्लोज, मतलब टाइम लिमिट एंड हो रही है, देन हम गिलोटिन अप्लाई करके जो भी डिस्कस्ड मैटर्स नहीं है उसको हम डिस्कस्ड वाले के साथ पेयर करते हैं एंड देन वी पुट देम टू वोट टुगेदर। तो 26 का डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द 26। देखते हैं, these are the parliamentary devices and relating substance. What is the cut motion? Now the cut motion is related to the move the proposal to reduce the expenditure on a budget proposal. What is calling attention motion? So it is to draw the attention of a minister on a matter of urgent public importance. What is the meaning of privilege motion? To draw the attention of the speaker towards incorrect or incomplete answers by the ministers. And what does this adjournment motion means? It means to interrupt the normal business of the hour. मतलब क्या? हाउस को एडजर्न कर दिया। ठीक है, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड, पहले भी एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी समझाया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारा रिवीजन हो जाएगा हमारा। टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, इज दिस अ पावर? नो। वाई? क्योंकि लोकसभा हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर, क्योंकि द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। नेक्स्ट इज टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, क्या ये पावर राज्यसभा के पास है? नहीं। तो किसके पास होती है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पावर। टू वोट फॉर अ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द मैटर्स रिलेटिंग which are charged on the consolidated fund of India can only be discussed, they cannot be put down to vote. So vote का एक्सपेंडिचर का पावर आ गया? नहीं आया। क्या क्या पावर दी गई है? तो डिले अ मनी बिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 डेज। यस बिल्कुल, तो राज्यसभा एट मैक्स कैन डिले अ मनी बिल फॉर 14 डेज। उसके बाद वेदर द राज्यसभा has provided to amend the money bill or not, it is up to Lok Sabha to accept or reject that. If the Lok Sabha rejects, तो the money bills shall stand passed without any amendment, क्योंकि exclusive power are there with the Lok Sabha. So D is the right answer. Now let's move to the next question. The method of election of the member of Rajya Sabha on the basis of proportional representation by the state legislation was borrowed from which constitution? So this स्टार मार्क करके इसको आप कहीं नोट कर लेना कि इट वॉज borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ लेट अस रिवाइज सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से। चलो कुछ रिवाइज करते हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? प्रीएम्बल भी लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ठीक है, जुडिशियरी, द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है which is mentioned under schedule 7. then आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSPs लिया गया है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ, ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन राज्यसभा passes the resolution by 2/3 majority. The Rajya Sabha passes the resolution by a 2/3 majority. D is the correct answer. Next is, which of the following statement is not correct? We have to underline the not correct statement here. There is a provision in the Constitution of India for readjustment of allocation of seats in the Lok Sabha upon the completion of each census. The statement is absolutely true. That is why delimitation commission has been established by the parliament. एंड टोटलिटी में अभी तक 4 times it has been established. Next is, if for a period of 60 days a member of either house is absent without permission of the house from all meetings thereof, the house may declare a seat vacant. Absolutely correct statement है ये भी। 60 days if a member is absent without informing, तो the seat of the member of the parliament shall remain vacant. Now the Rajya Sabha approves money bill after it has been passed by the Lok Sabha. I already told you the powers regarding money bill are exclusively vested in Lok Sabha. Rajya Sabha has no powers. The not correct statement क्या हो गया? It is the C statement. Now next is question number 32, which says a money bill originates only in lower house of the parliament.
Absolutely correct. Now the lower house of the parliament is a popularly elected body. Yes. Why is that so? लोकसभा का मतलब क्या है? हाउस ऑफ पीपल. मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था. The members, the citizens of the country elects their representative who represents them in Lok Sabha through general elections, and these elections are conducted by the Election Commission of India. अंडर 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है एंड 326 में इट इज़ मैंशनड अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. चलो ये मैं इमोशंस में बह के मैंने इतना ज़्यादा बता दिया लिंक करके, बट आई विल टेल यू दैट इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. ठीक है, अभी के लिए वी नो दैट बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर एब्सोल्युटली ट्रू. सो A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Let's see the next question. Which one of the following schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the council of state? I have already mentioned in the explanation part. It is schedule 4 of the constitution. Third schedule is related to oath and affirmation. Fifth schedule is related to the management of the scheduled areas. Except four states which is mentioned under 6th schedule. कौन से states हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ये 6 शेड्यूल के स्टेट्स हैं. अदर देन दीज 4 ऑल दी शेड्यूल्ड एरियाज के प्रोविजंस आर मेंशन्ड अंडर द 5th शेड्यूल. तो हमारा करेक्ट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हमारा बी विल बी दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 312 दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बताओ. ऑल इंडिया सर्विस 312 बताया हूँ, 4 बार बता दिया अभी तक. द रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटीज इज मैंशनड 1956 में. ठीक है, आर्टिकल 262 1956 में रिवर्स बोर्ड एक्ट बनाया गया था. जोनल काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. वाई इट इज़ नॉट? क्योंकि इट वॉज मेड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसके अंदर देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स विच आर हेडेड बाय द होम मिनिस्टर. ये पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. Administrative tribunals are under part 14A, particularly 343A, 343B के अंदर में there are tribunals. These are made by the 42nd Amendment Act. So all India services would be the correct answer. Payment from the Consolidated Fund of India are authorized by. I've already told you Consolidated Fund of India से अगर पैसा निकालना है तो Appropriation Act पास करना पड़ेगा. ठीक है, वही क्वेश्चंस रिपीट हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द वोट ऑफ क्रेडिट. व्हाट इज वोट ऑफ क्रेडिट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. यह भी एक्सप्लेनेशन पहले क्वेश्चन में ये था ना, ऑप्शन में था. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया देन वोट ऑफ क्रेडिट से हम पैसा निकालते हैं. कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. एंड देन वी गिव इट टू द स्टेट्स और जो भी रिसोर्स स्ट्रेच है वहाँ पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 37. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट. आस्किंग क्वेश्चन मतलब क्या? क्वेश्चन आवर. येस, इट इज़ अ मेथड. कमिटीज, देयर आर कमिटीज टू कंट्रोल. एब्सोल्युटली करेक्ट. रिव्यू ऑफ डिसीजन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन से हमें पता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेज द मेजोरिटी, द गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉल्स. कौन सा इज नॉट अ मेजर? सो रिव्यू ऑफ अ डिसीजन इज नॉट अ मेंशन, इज नॉट अ मेजर. हमने कहीं भी नहीं पढ़ा ये. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. नाउ द 38 क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A bill returned by the president for reconsideration does not lapses on the dissolution of Lok Sabha. Correct. A bill passes by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution. A bill under consideration of Lok Sabha lapses when the Lok Sabha is prorogued. Dissolve पे होता है सिर्फ ये, ध्यान रखना. Let us see the option. हमने देख लिया, क्या बोला था मैंने? डिसॉल्व. 3 तो हो ही नहीं सकता. तो 1 2 तो दोनों में, 4 देख लेते हैं. अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्सेस. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? आई हैव टोल्ड यू अ बेसिक फंडा. फंडा क्या है? इफ़ कोई भी बिल लोकसभा को टच करेगा देन ऑटोमेटिकली लोकसभा के डिसोल्यूशन पे द बिल स्टैंड्स शैल लैप्स. ठीक है.
अगर वो उसने राज्यसभा को टच कर लिया बट लोकसभा पे स्टिल टच नहीं किया तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा, बट कोई भी बिल इफ़ इट टचेज लोकसभा इट इज़ गोइंग टू लैप्स. Correct answer is 1, 2 and 4. Let us now move to question number 39. During the discussion on the demand for grants, cut motion can be moved to reduce the amount of demand. Which of the following categories are classified as cut motion? इनमें से कौन कौन से कट मोशंस के एग्जाम्पल हैं? तो पॉलिसी कट बिल्कुल, इकोनॉमी कट यस, टोकन कट यस, प्रोग्राम कट नाम का कोई कट होता है क्या? नहीं होता. ठीक है, 4 तो कहीं मेंशन नहीं है, 1, 2, 3 इज राइट. ठीक है, और पॉलिसी कट क्या होता है? पॉलिसी कट व्हेन द फंड्स आर नीडेड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंसेस ऑन अ न्यू सर्विस. कोई भी न्यू सर्विस पे हमें खर्चा करना है, देन द रीअप्रोप्रिएशन कैन बी मेड टू दैट बाय द कट मोशन. लेट्स सी क्वेश्चन 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि राज्यसभा इज़ नॉट अ सब्जेक्ट फॉर डिसोल्यूशन. और राज्यसभा के मेंबर्स के रिगार्डिंग प्रोविजन कहाँ मेंशनड है? दीज आर मेंशनड इन द रिजर्वेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 वेयर इट इज़ गिवन दैट 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. तो 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 year. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. Which one of the following is the correct sequence through which an ordinary bill is passed? ऑर्डिनरी बिल के पास होने का हमें बताना है. देखते हैं. ऑथेंटिकेशन, डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, पोस्ट इंट्रोडक्शन, एसेंट. देन सबसे पहला क्या है? पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, यस. देन डिस्कशन होता है, फिर क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है, फिर ऑथेंटिकेशन होता है, एंड लास्टली इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है. सो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस? तो बी हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन और कहीं पे नहीं दिया है, सीधा डिस्कशन पे बात किया है, और इसमें तो ऑथेंटिकेशन जो कि 4th स्टेप है उसके बारे में बात हुई है. तो बी हमारे यहाँ पे इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you that the money bill के regarding the exclusive power lies with the Lok Sabha, and Lok Sabha is headed by the speaker, and speaker is the final authority who decides whether the bill is a money bill or not, and this decision is also not affected by a Supreme Court or any judiciary. मतलब अगर स्पीकर ने इंटरप्रेट कर दिया कि द बिल इज़ अ मनी बिल, सो नो जुडिशियल अपील lies to that also. ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोक सभा इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज in non-money bill, that is a ordinary bill passed by the parliament is returned by the president to the parliament for reconsideration. It is passed once again by the parliament without any change. Now I have already told you in the chapter of Council of Minister, by the 44th Amendment Act, if the president sends to the Council of Minister to reconsider a advice, and again the Council of Minister passes the same advice to the president regarding the same thing, the president has to accept it. So इसका मतलब क्या है कि अगर वापस से प्रेसिडेंट ने वो बिल को भेजा है पार्लियामेंट में, एंड पार्लियामेंट ने उसको विदाउट अमेंडमेंट वापस भेज दिया प्रेसिडेंट को, तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज एसेंट. डी इज राइट. Now the Lok Sabha Secretariat comes under the direct supervision of, so this I have already told you, comes under the Speaker of the Lok Sabha, क्योंकि Speaker is the leader and protector of the rights of the members. He also has a responsibility to uphold the constitution, uphold the rules of business, ठीक है, and parliamentary procedures. So the Speaker has this responsibility. Next is, which of the following regarding money bill is true? They originate in Lok Sabha. Yes. They originate in Rajya Sabha. No. Second is wrong. The Rajya Sabha can recommend amendments. Can the Rajya Sabha recommend it? So yes,
वो अलग बात है लोकसभा माने या ना माने, बट राज्यसभा कैन रिकमेंड द अमेंडमेंट्स. नेक्स्ट इज बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर. नो, द लोकसभा हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द मनी बिल. ठीक है, राज्यसभा के पास राइट नहीं होता है मनी बिल के रिगार्डिंग. दैट इज़ वाई 4 हमारा इनकरेक्ट है, 2 हमारा इनकरेक्ट है, 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर. ठीक है, 45 का हमारा बी इज़ राइट. Next is if a member of either house of the parliament is without the permission of the house absent from all the meetings thereof for more than a certain period, the house may declare his seat vacant. तो vacancy कब आती है? If the member of parliament remains absent for a period of 60 days or more. तो 60 days is correct. Next is we have to match. Now annual financial statement और बजट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था, इज आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन हमारा नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 115. एप्रोप्रिएशन बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 10 बार बोला है मनी बिल के बारे में कि इट इज़ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एप्रोप्रिएशन बिल इज आर्टिकल 114. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ एप्रोप्रिएशन बिल का आर्टिकल मैंने नहीं बताया आपको, ये भी नहीं बताया, बट इफ़ वी गो बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ 2. यहाँ पे देखो 2 2 का ऑप्शन है एंड देन हम मनी बिल पे आ जाते हैं विच इज़ 1. तो यहाँ से हम 50-52 एटलीस्ट कर ही सकते हैं. ठीक है, अगर एक और हमें पता है अप्रोप्रिएशन बिल पता हो कि आर्टिकल 114 है तो द क्वेश्चन विल बी क्लियर कट टू अस. नाउ नेक्स्ट इज which one of the following is not applicable regarding the purpose of cut motion. Now cut motion is related to budget. अब कौन सा option is not related to cut motion? Let us see. Raising question of urgent public importance. अरे भाई ये तो calling attention motion है. calling attention motion, adjournment motion होता है ये. ठीक है, ये कहाँ से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है. ये कहाँ से हो गया, ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना. 52 का क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल रिगार्डिंग कट मोशन. नाउ द कोरम रिक्वायरमेंट इन राज्यसभा इज, अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कोरम इज 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस. सो लोकसभा में 545 जो हैं हमारे मेंबर्स अभी प्रेजेंटली है, बट मैक्सिमम 550 मेंबर्स होते हैं. इसका 1/10 55 मेंबर्स हो गया. एंड देन राज्यसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 250. तो इसका कोरम कितना हो गया? 250 इंटू 1/10, इसका हो गया 25 मेंबर्स. सो व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायरमेंट? सो इट इज़ ऑफ 25 मेंबर्स. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा. अभी तक इसको मैं 10 बार बता चुका हूँ. देखते हैं चलो क्या है ऑप्शंस में. द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा. यस, इट इज़ अप टू द लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ही हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस साइन डाइन. अब जब मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट बता रहा था तो मैंने बताया था आपको एडजर्नमेंट सिंपल वाला एंड एडजर्नमेंट साइन डाइन ये कौन करते हैं? ये स्पीकर ऑफ द हाउस करते हैं. इसके अलावा समन, प्रोरोग एंड डिसोल्यूशन ये तीनों कौन करते हैं? तो दीज थ्री आर डन बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट देखते हैं. ही हैज़ द पावर टू समन द हाउस. देखो समन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है ना कि स्पीकर के पास. ठीक है, बी हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है. सो आंसर भी हमारा बी होगा. नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. वाई? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. हु? तो वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. एंड इलेक्टेड मेंबर्स को सेलेक्ट कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स किसको सेलेक्ट करते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी. ठीक है, 56 का क्या आंसर है हमारा? डी आंसर यहाँ पे करेक्ट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट डज वोट ऑन अकाउंट मीन्स। ठीक है, अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है देखो। नाउ अगर मान लो इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस होने से पहले बजट पास होता है नॉर्मल टेन्योर में। अगर मान लो किसी भी रीज़न के हिसाब से बजट पास नहीं हो पाया है, बट देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच हैव टू बी डन बाय द कंट्री, और हमें पता है दीज एक्सपेंसेस आर टू बी टेकन फ्रॉम दी पासिंग दी एप्रोप्रिएशन बिल। हमें एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। किस लिए पास करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जब इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से पहले सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, बजट नहीं हो पाता, देन ये वोट ऑन अकाउंट का मेजर है हमारे पास टू विड्रॉ द मनी टू मीट दी एक्सपेंसेस। अब हम देख लेंगे किसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। टू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू वोट, बिल्कुल गलत। प्रपोजल सबमिटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ भी दिया है। टू ब्रिंग अ प्रपोजल रिलेटेड टू द स्पीच, बिल्कुल गलत है। डी ही इसका आंसर होगा। इफ द बजट इज नॉट पास बिफोर द 1 अप्रैल, द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू सैंक्शन एनी ग्रांट इन एडवांस टू मीट दी एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारा डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज the railway budget was separated from the central budget in the year. I've already told you in the explanation part, it was separated in the year 1921. Let's now move to the next question. Which of the following statement related to money bill is not correct? Now it cannot be introduced in the Council of State. Correct statement है, if any question arises whether the bill is money bill or not, the decision of the Lok Sabha speaker is final. Correct है. In case of a deadlock over money bill, the president can summon a joint sitting. No, I have already told you ordinary bill के केस में joint sitting होती है अंडर आर्टिकल 108। ऑर्डिनरी जॉइंट सिटिंग कौन से केस में होती है? जब देर इज़ अ डेडलॉक, मतलब दोनों के दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर्स हों। एंड वी नो दैट इन रिगार्डिंग द मनी बिल, लोकसभा के पास है मोर पावर देन द राज्यसभा। सो सी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एस्टिमेट विच रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब मैंने ये 10 बार बताया है, द एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी पुट टू वोट, बट क्या उस पर डिस्कशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो अब देख लेते हैं। कैन बी डिस्कस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल ओनली, देन है कैन बी डिस्कस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली, कैन बी डिस्कस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बिल्कुल सही, हम किसी भी हाउस में से डिस्कस कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, 50 का सी इज राइट। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लैप्स इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल। तो भाई स्टेटमेंट ही गलत है। रूल ऑफ लैप्स क्या? कि अप्रोप्रिएशन फंड के फंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी फंड बचेगा वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वापस उसको दूसरे साल पे नहीं हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इट इज़ इफेक्टिव ना, तभी तो बना है। एजर्शन हमारा फॉल्स है, रीज़न हमारा ट्रू है। करेक्टली हमारा देखो आ गया यहाँ पे आंसर। तो सम क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व थ्रू कॉमन सेंस। Now next is the joint session of the two houses of the parliament is chaired by the, joint session को कौन चेयर करता है? So the joint session is chaired by the speaker of the house of people। और लोकसभा अगर स्पीकर नहीं प्रिसाइड कर रहे हैं then it will be presided by the deputy speaker, and if deputy speaker is also not there then it will be presided by the डिप्टी चेयरमैन। एक पॉइंट बस यहाँ याद रखना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग। ठीक है, यही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इज, ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि थोड़ी सी ना नंबरिंग का इशू हो गया है, स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट क्वेश्चंस आपके सारे कवर्ड हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड्स का उसमें थोड़ा सा इशू हो गया है, दैट इज़ वाई। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपके पूरे 100 कवर हैं, थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। सो व्हाट डज 59 सेज? अंडर आर्टिकल 368 कौन सा है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट। कैसे पास कर सकते हैं?
भाई स्पेशल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, दैट इज़ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मेजोरिटी होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सिंपल मेजोरिटी नहीं, 2/3 मेजोरिटी नहीं, ये तो भाई सही है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप कहाँ है, 3/4 बिल्कुल गलत है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा डी स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन क्या है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना में। द रेलवे बजट एंड द डिमांड फॉर ग्रांट रिलेटिंग टू द रेलवेज आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट सेपरेटली। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों, 1921 में तो सेपरेट हुआ था रेलवे बजट जनरल बजट से। नेक्स्ट इज जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री। यस, जनरली एक डिमांड फॉर ग्रांट मिलती है। Third is the demand of grant for the Department of Telecommunication is presented to the Parliament separately. No, collectively demand present होती है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, सेपरेट टेलीकम्युनिकेशन की डिमांड नहीं जाती है। ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन था, ठीक है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज करेक्ट। द स्पीकर नॉट करेक्ट बोला है। द स्पीकर सर्टिफाइज वेदर द पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, करेक्ट। डिस्कशन ऑन ए मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट। अब ये सही है, नहीं भाई, डिप्टी चेयरमैन डिप्टी स्पीकर करते हैं प्रिसाइड, उसको वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से आ गए। नाउ द स्पीकर हैज द पावर टू curtail और कैंसिल 0 आवर। यस, द स्पीकर नॉमिनेट्स द चेयरपर्सन्स ऑफ वेरियस कमिटी। यस, एंड कमिटीज़ के रिगार्डिंग एक पॉइंट बताया था, उसको ध्यान रखना कि जो डिप्टी स्पीकर है ना ऑफ द हाउस, इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर of any of the committee, he automatically becomes the chairman of that committee. Okay, हमारा सॉरी इसका बी सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन एप्रोप्रिएशन बिल। नो अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, इट हैज़ टू बी पास्ड like that. Speaker is empowered to withhold the permission on the matter of repetitive nature. Yes, now the Rajya Sabha has power to amend or reject the bill. जब मैंने बोला कि appropriation bill is specifically to withdraw the money out of the consolidated fund of India, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वोट का पावर नहीं है, डिस्कशन का पावर है। तो जब डिस्कशन का पावर है तो वो डिस्कस कर सकता है, वोट करके उसको अमेंड रिजेक्ट थोड़ी कर सकता है। थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 1 and 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। Now let's see the next question, that is question number 63. According to the parliamentary procedure, the term guillotine means that the speaker, अभी guillotine का क्या मतलब बताया मैंने, कि मान लो 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, एक पार्ट पे डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनडिस्कस्ड पार्ट को डिस्कशन वाले पार्ट के साथ मैच करके वोटिंग करा दी जाए, यही तो बताया था। अब देखते हैं बेस्ट कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को। स्टॉप द बिजनेस ऑन द हैंड एंड पुट्स द मैटर डायरेक्टली टू द वोट, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल डिस्कसिंग अ बजट द पार्लियामेंट कैन नॉट, तो पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता है, गिव एन असेंट तो दे ही सकता है, रिड्यूस द डिमांड यस, रिफ्यूज़ द डिमांड यस, इंक्रीज द डिमांड नो, टोकन कट, पॉलिसी कट सुना होगा, पॉलिसी कट का क्या मतलब है, डिमांड रिड्यूस हो सकती है बट इंक्रीज नहीं हो सकती। अब ऐसा थोड़ी है कहीं 1000 एलोकेट करना है तो बोलोगे कि अब बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि देयर आर वेरियस सेक्टर्स जहाँ पे पैसा एलोकेट करना होता है, तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते डिमांड को, ठीक है। नेक्स्ट इज 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एडजर्नमेंट मोशन। द मैटर इज़ अर्जेंट बताया मैंने, द मैटर इज़ ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट बताया, द मैटर डज नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, तो बिल्कुल भाई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं आ सकता। द मैटर इज़ फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिक होता है ये, जनरल टर्म्स में नहीं होता है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, which one of the following carries out the demarcation of the electoral constituencies in each state and allocation of seat in the Lok Sabha to the different states। क्या बताया था मैंने, after each census there is
readjustment of the seats, and this readjustment of the seat is done by the delimitation commission which is appointed by the parliament, and अभी तक ये 4 times बनाई गई है. delimitation is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट टू 0 hour इज करेक्ट. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, गलत है. इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर. एंड सेकेंड इज इट कवर्स द क्वेश्चन रेज्ड ओवर मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. यस, ये स्टेटमेंट सही है. इट इज़ रिलेटेड टू द मैटर ऑफ public importance. First one is wrong, second one is absolutely correct. Next is which one of the following is true of the Appropriation Act. It is the demand for grant approved by the parliament. Nahi. It is applies to the approval of budget. Nahi. Authorization by the parliament for withdrawal of money from the consolidated fund of India. Absolutely correct. 5 बार बता चुका हूँ अभी तक. ठीक है. आर्टिकल याद कर लेना साथ में. 114 है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट इन इनैक्टिंग द बजट. नाउ इट कैन इंक्रीज द टैक्स बट नॉट रिड्यूस इट. गलत है भाई. रिड्यूस कर सकते हैं टैक्स को, इंक्रीज नहीं कर सकते, उल्टा दिया है. इट कैन इंक्रीज द टैक्स एज वेल एज रिड्यूस और एबॉलिश. इंक्रीज नहीं हो सकता. It cannot increase the tax but can reduce or abolish it. Absolutely correct statement है हमारा 69 का C. So क्या सही आंसर होगा? C. I hope कि आपको समझ आ रहा होगा. इजी क्वेश्चन ही हैं. Who among the following can establish additional code for better administration of any existing law with respect to matter contained in the union list. अब मुझे बताओ कोर्ट्स के रिगार्डिंग जो पावर होती थी वो किसके पास होती थी? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस थ्रू सिंपल मेजोरिटी. याद आया? अमेंडमेंट ऑफ द चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर याद आया? उस चैप्टर पे मैंने आपको बताया था कि ये किसके पास पावर होती है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस. इट इज़ विद द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट की क्या पावर होती है कि किसी भी और एल्स अदर कोर्ट को द पार्लियामेंट कैन असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू द रिट्स. तो एडिशनल कोर्ट्स कौन इस्टेब्लिश करेगा? पार्लियामेंट ही तो करेगा. अगर मेरा वो चैप्टर आपने ढंग से सुना होगा तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. ठीक है. पार्लियामेंट के पास पावर होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वोट गिवन बाय हिम इन अ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट. yes, the statement is absolutely true. Why it is true? क्योंकि this is a type of parliamentary privilege which is given under article 105. A house of parliament can try anyone or any case directly as a court of justice. No, it cannot. No member of parliament shall be liable to any proceeding in the court in respect of anything said in the parliament. Yes, these are the types of individual rights that are given to the member of the parliament. So हमारा 1 and 3 is the right answer. Next is राज्य सभा has equal powers विथ लोकसभा. कौन से केस में होती हैं भाई बताओ. चलो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. नाउ इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सक्लूसिव पावर होती है भैया राज्यसभा की. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का लेना देना राज्यसभा से तो डायरेक्टली है ही नहीं, लोकसभा से है ना. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ होते हैं? किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को होते हैं. एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो दे नीड टू रिज़ाइन. तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट तो तभी होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ राज्यसभा. एंड मेकिंग कट मोशंस कौन कर सकता है? तो भाई लोकसभा में हो सकता है. बजट के डिस्कशन की पावर तो सिर्फ राज्यसभा के पास है ना, लोकसभा के भी पास में है, बट वोट करने का राइट तो सिर्फ लोकसभा के पास है. तो कट मोशन राज्यसभा से कोई रिलेशन नहीं है. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. हु अमंग द फॉलोइंग चूजेज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी इट्स चेयरमैन. अभी कौन करेगा बताओ? सिंपल सी लॉजिकल बात है. अरे भाई, मेंबर ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट डिप्टी चेयरमैन कहाँ से बनेगा? राज्यसभा का. राज्यसभा से ही तो बनेगा, वहीं के तो मेंबर सिलेक्ट करेंगे ना.
डी इज द करेक्ट आंसर. The demand for supplementary grants must be presented to and passed by the house. ठीक है, कब हम प्रेजेंट कर सकते हैं? बिफोर द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर. यस, बजट के पहले नहीं, आफ्टर द विड्रॉल के बाद तो कोई मतलब ही नहीं बनता. पास होने से, रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स. इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ताकि जो फैक्ट्स अगर मान लो छूट गए तो वो आपके कवर हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मैंने आप बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसको. तो emoluments and allowance of the president, another expenditure relating to his office. Yes. Emoluments and of allowance of the prime minister, another expenses relating to his office. अब मुझे ये बताओ कि क्या मैंने कहीं पे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया था? कहीं पे भी नहीं लिया था. ठीक है, सेकंड एलिमिनेट कर दो. चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. यस. चेयर सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. यस. इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन भी, सैलरी भी. हाई कोर्ट के जजेस की ओनली पेंशन. देन कैग, देन यूपीएससी, इन्हीं का तो नाम लिया था. एंड क्या लास्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर का कहीं नाम नहीं था. ठीक है, सेकेंड वी विल एलिमिनेट डायरेक्टली. आंसर विल बी हमारा सी. नेक्स्ट इज द डिमांड फॉर ग्रांट कैन इमेनेट ओनली फ्रॉम, मतलब कहाँ से आ सकते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट? सो इट कैन बी डायरेक्टली देयर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. नेट वी हैव टू मैच. हमारा 76 क्वेश्चन में हमें मैच करना है. ना वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? पहले से ही एडवांस दे दो बजट पास होने से पहले, ये तो हमने देखा था. नेक्स्ट इज वोट ऑन क्रेडिट. वोट ऑन क्रेडिट हम कब दे सकते हैं? एडिशनल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द बजट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, डिटेल्ड एस्टिमेट्स एंड डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट्स. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी 4, 1, 2, 3. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय जीरो आवर. तो यहाँ पे हम मिनिस्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो इट इज़ अ टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आवर. तो जीरो आवर इज क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर होता है एंड इसके बाद एजेंडा ऑफ द डे होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द राज्यसभा आर करेक्ट. सबसे पहले, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. यस. इट हैज़ अ टर्म ऑफ 6 years. यस, मेंबर्स का टर्म होता है 6 years का. ठीक है, राज्यसभा पूछ रहा है यहाँ पे, मेंबर्स नहीं पूछ रहा. अगर मेंबर्स होता ना, मेंबर्स का टर्म होता है 6 year एंड इट हैज़ बीन गिवन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. सेकेंड हमारा गलत है यहाँ पे, सेकेंड इज रॉन्ग. मेंबर्स होता ना देन वो सही होता. 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 year, एब्सोल्युटली करेक्ट. And its members shall not be less than 25 years of age. No, 25 years of age is of Lok Sabha. राज्यसभा के केस में द एज इज 30 years. ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 and 3. Now which one of the following has precedence over every other motion? तो बताओ कौन सा मोशन है ये? हाफ एन आवर डिस्कशन है. ठीक है. नेक्स्ट इज मनी बिल डील्स विद द receipt of money on account of the public account. Absolutely correct. Then हमारा गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बोरोइंग मनी. करेक्ट. इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया. कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड. सारे के सारे हमारे सही हैं. टैक्स से रिलेटेड जो भी होगा वो सारा का सारा मनी बिल में आएगा. करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2, 3 and 4. Now next is when an advance grant is made by a parliament pending the regular passage of the budget, it is called, क्या बोलते हैं उसको? इट इज़ कॉल्ड अ टोकन ग्रांट. नेक्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑन इन द बिहाफ कंटेन इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड बॉडी फंक्शनिंग एट द लेजिस्लेचर इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल. भाई ईच यूनियन टेरिटरी नहीं होती है ये.
ठीक है। ईच स्टेट तो में हो सकता है, यूनियन टेरिटरी नहीं होती है क्योंकि सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज ओनली 1। नेक्स्ट देखते हैं 84। The nature of a bill which is to be certified by the speaker as a money bill shall not be open to discussion in either house of parliament but can be taken up in the court of law। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मनी बिल के रिगार्डिंग स्पीकर का जो डिसीजन होता है दैट इज़ फाइनल, एंड जुडिशरी एंड कोर्ट ऑफ लॉ में वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो ले जाने की बात ही नहीं हुई, गलत स्टेटमेंट है। आफ्टर द ग्रांट्स इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वोटेड, the grants so made by the House of People as well as expenditure charge on the Consolidated Fund of India are incorporated in the appropriation bill। No, these are in there in the finance bill। सेकेंड भी हमारा गलत है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या बोल रहा है? यूजुअली अ वोट ऑन अकाउंट इज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड वोटेड अपॉन द पार्लियामेंट। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, पहले पैसा दे दिया जाता है, इट इज़ नॉट डिस्कस्ड एंड वोटेड। Next is a vote on account empowers the Lok Sabha to make grant in advance for a time for a financial pending completion of the budgetary process। बिल्कुल स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। ठीक है, बजट जब डिस्कस होगा, बजट पे वोट होगा, उसके बाद हम अप्रोप्रिएशन बिल से पैसा निकालेंगे, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। बट वोट ऑन अकाउंट में तो बजट के पहले हम पैसा निकाल रहे हैं, तो वोटेड कहाँ से हो गया? वोट तो होता ही नहीं है, दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट इज व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाई। अभी ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या प्रोसीजर होता है? इट हैज़ टू बी पास बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑर्डिनरी बिल के लिए। ठीक है, next is consider with the statement with respect to Rajya Sabha. The origin of the Rajya Sabha can be traced back to 1919 when the pursuance of the State Government Act, a second chamber known as Council of State was created। करेक्ट बात है बिल्कुल। वाई? क्योंकि 1919 के एक्ट में बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस, मतलब 2 हाउसेज वेयर इंट्रोड्यूस। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? द राज्य सभा है स्पेशल पावर टू डिक्लेयर दैट इट इज नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट that the parliament may make law with respect to matters in the state list। absolutely true। आर्टिकल 249 है ये। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सही करने के लिए ना, अभी के पहले जितने चैप्टर्स पढ़े हैं आपने उसका सारा आपको पता होना चाहिए। अगर पता है फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो यू नीड टू नो दिस। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 88। चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बताओ इज नॉट सबमिटेड टू वोट। क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि द expenditure that is charged upon is only to be discussed not voted। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर चार्ज टू होता है दैट इज सब्जेक्ट टू वोट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89। स्टैटिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द आर्टिकल। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 265 है। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। Question number 90. The estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India includes the budget required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the forms of what? These are submitted in the form of demand for grants। Next is the question asked orally after the question hour in the house is called what? Orally क्या पूछे जाते हैं? Supplementary question। Start question वगैरह these are all in written form, जिसमें कि मिनिस्टर को written reply देना पड़ता है। Next is the economic cut motion seeks to reduce the proposed expenditure of the demand of grant by how much? तो by a specified amount। ठीक है। Next is question number 93। मनी बिल क्या है? इट नॉट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू वोट। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? चार्ज हमारा बजट प्रायर कंसिडर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तो कोई रोल नहीं है। इनैक्टमेंट ऑफ बजट, क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 4312। ठीक है, 4 बजट, 3 प्रायर कंसिडर ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2।
नेक्स्ट है हमारा द पेंडिंग पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस 1931 empowers द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच तो 75 days. Next is question number 95. The consolidated fund of India is made up of what? All the revenue receipts of the government. जितनी भी इनकम है वो सारा इंक्लूड होता है. Next is the grant provided by the parliament in respect of estimated expenditure for the part for ensuring the financial year pending the regular passage of the bill of the budget is called what? So it is called vote on account. Next is in the context of the budget the term guillotine is used with a reference to what? Guillotine किसके लिए यूज होता है? It is used for voting of demands. क्योंकि अनडिस्कस्ड वाले को डिस्कस्ड के साथ मैच करके एंड इट इज पुट डाउन टू वोट. नाउ व्हाट डज द चार्ज एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स? बहुत बार बता दिया. जजमेंट, डिक्री, अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द हायर ऑफिशियल, सारा का सारा इंक्लूडेड होता है. नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट एक्सर्ट्स अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द अप्रोप्रिएशन प्रोसेस. यस, the gross amount of the appropriation determines the volume of official activity and itemized appropriation act may leave title or no administrative discretion. Yes, statement 2 बिल्कुल सही है and statement 2 is a correct explanation of 1. बिल्कुल हमारा A सही है. Next is consider the following statement, question number 100, and it is going to be the last statement. After the demand for grant in the annual financial statement are voted by the Lok Sabha, the grants so made as well as the expenditure charge on the consolidated fund of India are incorporated in the annual finance bill. True, क्योंकि appropriation act के बाद, appropriation bill के बाद there is finance bill and finance bill pass होने के बाद ही पैसा मिलता है. The taxing proposal of the budget are included in the appropriation bill. Yes, absolutely correct. दोनों के दोनों statement हमारे यहाँ पे सही है. With this we have finished our parliament chapter, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है इन द बुक्स. ठीक है, कमेंट करके बताना अगर वीडियो यहाँ तक देखी है कैसी लगी ये वीडियो. ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.